बैठो। ठीक है हाँ। हो गया स्टार्ट? ओके स्टार्ट हो गया। ठीक है अच्छा फोकस का बस ठीक है। चलो जी। These are I've basically titled it flip sides, but we can say surprising points, negative points, whatever things are. PLI comes as a major surprise that there is no more addition to PLI scheme for the given 13 or 14 sectors that were there. However, the government has introduced another scheme, domestic industry incentivization scheme. But however, it is unclear what its objectives would be and if it would be same as the PLI. Right? Then, like I mentioned, the free food scheme, which was there. Firstly, there is a question mark if there was a need, but like I said, considering the voting that has to be done next year, we can take a balanced stand on it and present both the sides, right? And then tax, before the tax structure, some points that we were discussing as to R&D expenditure that would have been more, something related to crude exploration that is missing. So those are the missing points that sir mentioned in previous presentation as well. For that, yeah, so that's it. Now only the tax structure is left, which is also somewhat of a, I would say, both sides are there in the tax structure as well. There are benefits of it as well, but however, there are drawbacks also if we do not make a smart choice as a taxpayer, right? So we can continue with understanding the tax structure. These are the basic things that have been done. These are the current tax structure. So the first thing that I would like to tell is there was an old tax regime which is called a old tax regime, wherein there were tax rates of 0, 5, 20 and 30, right? Then there was a new tax structure with percentages such as 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30, which was a 6 slab. लास्ट ईयर था Right? It is called the new tax regime existing. The tax structure that it has announced in this budget is the tax structure which is proposed, new tax regime proposed. Wherever you read it, new or tax, then you need to be clear if it is the existing one or it is the proposed one. So basically, you cannot be calling it old per se because technically the old tax regime is something else altogether. So we can say because the current that she has announced a couple of days back, it will firstly be passed. It has to be passed in the, I'm not sure, parliament or by the president, but something has to be passed. It is not yet passed, so it is called proposed, right? She has said that if at all people go to file their returns, they would definitely, by default, be applying in the new tax structure which is proposed, right? However, there is an option of filing a return in the new tax regime existing one. Just for 22-23, yeah, previous year, right? Only because of, for the current Assessment year 23-24. 23, 20, Assessment year 23-24. Assessment year last year. मतलब for this Yes, जो ending ongoing year है, ending on tax filing 31st March of 2023 हाँ जी. of the previous year, Yes, sir. you have the option. Very good. Clear. फिर उसके बाद ये जो प्रपोज है यही इम्प्लीमेंट होगी। वही उस पे आते हैं. तो जैसे अभी क्या है, गवर्नमेंट ने जो ये करा है उसको समझने के लिए ये चीज है कि जैसे उनका पर्पस है डिफरेंट जो मतलब पॉजिटिव साइड से भी नेगेटिव साइड से भी दोनों तरफ से देख सकते हैं उसको. बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज न्यू टैक्स regime प्रपोज के अकॉर्डिंगली अभी के लिए हम उसको ईज के लिए ओल्ड और न्यू मान के चल लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना होता है. तो उन्होंने न्यू टैक्स regime में वो ये चाहते हैं कि हमारी जो अभी सेविंग हैबिट्स हैं दे आर बेसिकली लिंक्ड टू द टैक्स डिडक्शंस दैट वी कैन अवेल, राइट? अगर आपने सुना होगा भी अपने पेरेंट्स से नहीं से कि 80C, 80D, 80G ये सारी डिडक्शंस होती हैं जिससे क्या होता है हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है. ग्रॉस इनकम होती है जो हमने इन हैंड पहले अर्न कर लिया, ठीक है, उसमें से हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके पर्टेनिंग हम डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं, तब उसको माइनस करके हमारी टैक्सेबल इनकम आती है. ये चीज क्लियर होगी, ठीक है? अब क्या है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी जो सेविंग हैबिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं, वो इनबिल्ट होनी चाहिए, ना कि बिकॉज ऑफ डिडक्शंस होनी चाहिए, ठीक है? तो उस चीज को एनकरेज करने के लिए उन्होंने भी ये regime लाई है. ऑल्सो ये भी है कि ऐसा होगा अगर हमें गवर्नमेंट ने बजट में शी सेड दैट वी आर फॉर गोइंग
35,000 crores because of the new regime, right? However, in my view, they might be foregoing that amount if all the people come into the new tax regime, right? One thing. And secondly, even if they have to forego of the 35,000 crores, that is a direct foregoing. However, less taxes mean people will have more spending power, more money to consume things. So उससे ज़्यादा they will consume more और वो money economy में circulate होगी, जिससे कि indirect taxes से उनका revenue generate हो ही जाएगा. So I think कि indirect net में उनको loss तो नहीं होने वाला. It is a very smart government per se. उन्होंने obviously they are chief economic advisor और very smart लोग हैं, तो ऐसे loss तो नहीं होने देंगे country को. Okay, but then obviously people will have more things, more money in their hand, and obviously they can choose to invest it anyways, right? तो ये हमारा comparison है old tax regime का. आगे मैंने एक कैलकुलेशन भी करी है, डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, और हो सकता है कुछ गलतियां भी हो आगे वाले कैलकुलेशन में, ठीक है? बट एक फेयर आइडिया लेने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सैलरीड एम्प्लॉयज की पहले मैंने कैलकुलेशन करी जिनको सैलरी आती है, ठीक है? तो पहले क्या था, 50,000 जो भी सैलरी लेते थे वो लोग 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर ही सकते थे एनी विच, ठीक है? तो उन लोगों को भी इसमें पुश करने के लिए उन्होंने 52,500 कर दिया इसको, मोर देन जिनकी इनकम 15.5 लाख से ज्यादा है, टैक्स जो रेट्स हैं स्लैब वो कम कर दिए, ठीक है? मतलब अगर डिटेल कैलकुलेशन में जाओ तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 50,000 प्लस इसमें शिफ्ट होने का 2,500 का एक नेट करके 50 प्लस 2,500 का होता है। फिर जो फर्स्ट स्लैब होती है, जो ये वाली स्लैब थी 2.5 लाख पे 5%, वो 12,500 होती है उस हिसाब से, तो 52,500 उन्होंने इसको कर दिया, ठीक है? तो अब क्या ओल्ड टैक्स जो मतलब एग्जिस्टिंग, न्यू टैक्स में एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड, इसमें क्या है, कोई डिडक्शन अवेल नहीं करी हुई, सिर्फ 50,000 वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेल करी है इसमें और 52,500 इसमें अवेल करी हुई है। तो उसके हिसाब से हमारा टैक्स बनेगा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से वो ये बनेगा। इसको देख के तो हमें यही लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में आना गेन है, ओल्ड माइनस न्यू इज आर गेन, ठीक है? तो किसी की इनकम अगर 6 लाख है तो ओल्ड रिजीम में इतना टैक्स पे करना पड़ता है, न्यू रिजीम में कुछ पे नहीं करना, क्योंकि 7 लाख तक की रिबेट होती है। रिबेट मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम अगर जैसे अभी एग्जिस्टिंग की बात करें तो 5 लाख, मतलब किसी की इनकम 4.5 लाख है तो वो चाहे रिटर्न फाइल ना ही करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? बट अगर उसकी इनकम 6 लाख है तो वो रिटर्न तो फाइल करेगा, बट 5 लाख के कॉरस्पॉन्डिंग तो उस केस में 2.5 लाख तक की वो रिबेट ले सकता है। बट अगर किसी की 4.5 लाख है या 5 से कम है तो उसको भरने की भी जरूरत नहीं है ऐसा। तो इसको देख के तो हमें लग रहा है कि ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है, ठीक है? बट क्या होता है कि डिडक्शन अवेल करते हैं जनरली लोग, अभी तक तो एटलीस्ट कर ही रहे थे। न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर आई थिंक एनपीएस की अलाउड होती है, नेशनल पेंशन स्कीम, आई थिंक दैट्स फुल फॉर्म है, उसकी अलाउड है बस एक, बाकी और कुछ भी, और एक सैलरी की 52,500 वो है, ठीक है? पर वो जो 52,500 है वो 15.5 लाख से ऊपर वालों के लिए ही है, पर जो यहाँ पे 50,000 थी वो सभी के लिए अलाउड थी, ठीक है? तो अब ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करें अगर हम कि 1.5 लाख की डिडक्शन लेने के बाद, तो ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल आ रही है, ठीक है? तो ये एक चार्ट है जिसमें कि ये डिडक्शंस है और ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन है और ये इनकम है, ग्रॉस इनकम। तो उसमें वो बता रहे हैं कि कौन सी रिजीम आपको चूज करनी चाहिए, कि जितने भी आपकी इनकम और डिडक्शन का जो भी आपका जहाँ पे भी आप सेट करते हो कौन सी आपको बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी चूज करनी चाहिए, ये वही चार्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द केसेस में तो ओल्ड ही है, ठीक है? तो न्यू के भी अपने बेनिफिट्स हैं, बेसिक एडवांटेज ये उन्हीं को होगा जो 7 लाख तक के नीचे हैं, या फिर जो HNI हो गए बिल्कुल ही, जो उनका सरचार्ज वगैरह रिड्यूस कर दिया। अगर आपने डिडक्शन अवेल करनी है तो देन माय व्यू इज ओल्ड उसमें ही रिजीम में ही बेनिफिशियल रहेगा। So basically that was it. Nice, very good. Good presentation skills, very good confidence, very good. God bless. IIM Ahmedabad deserves you. ये लो जी। कितने दिए थे? 3 ना? और 3 नहीं है, 2 गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसकी कोई भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हाथ में से, युगम जी। मेरे को एक क्लियर कर दो, नया जो एग्जिस्टिंग है वो इस साल जो टैक्स भरेंगे इस साल तो वही समझ वही क्वेश्चन मैंने भी पूछा था। जो अभी 31 मार्च को खत्म होगा तो जो तुम टैक्स भरोगे अगले साल किसी भी रिजीम में भर सकते हो। वो जो अभी अनाउंस हुआ है कल उसमें भी या ऑप्शन है। अभी वो कंटिन्यूड है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, न्यू पे रिफ्यूज करना।
So Maybe. basically from this year onwards itself we can file the new return, the 7 लाख की अब सिर्फ इस साल एक बाकी फिर भी किसी सीए से करता हूँ नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी के लिए तो नहीं होती 50,000 वाली होती है जो सीधा डायरेक्ट डिडक्शन। टिपिकल इनकम टैक्स लॉयर बता सकता है, नॉट एक्सपर्ट। सुनो वो बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ओके, इसके साथ सैलरी में तो भी क्या डिडक्शन जो 50,000 वो सैलरीड क्लास नॉट एक्सपर्ट ऑन टैक्स। सैलरीड क्लास if के your salary now is 15 lakh 50,000 so you can avail 50 to 500 पहले फिर ऐसा था कि 50,000 को कोई भी अवेल कर सकता था, और जो 50 to 500 है उसके लिए मिनिमम इनकम 15.5 लाख होनी चाहिए। युगम की पीपीटी, उसके बाद विल स्टार्ट द मॉक्स। कौन देगा आज मॉक इंटरव्यू? आश्रय आपको आज देनी चाहिए। दे रहा हूँ। ओके, और हाथ फास्टर फिंगर फर्स्ट है, तीन ही हुए विद आप। क्यों जी मैडम, आज देना चाहिए आपको, और क्या? यस सर आज नहीं हो अरे कुछ तो दो, आप पहले 3 देखो उसके बाद दो। जनरली कुछ तो पता चलेगा। मेन चीज है यहाँ, आवर फोकस विल बी ऑन अप्रोच। व्हाट शुड बी योर अप्रोच, हाउ टू फाइंड मिडिल वेज, किस टाइप के क्वेश्चन को क्या राइट तरीका है देने का, बॉडी लैंग्वेज। मैंने खुद से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। कुछ नहीं प्रिपेयर करो, कुछ नहीं। जनरल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए, सच्चाई में ऐसे चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, कभी 10 में से 10 क्वेश्चन अपने कराए हुए आ जाते हैं, कभी 10 में से 6 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कभी कोई भी नहीं आएगा, हो सकता है। बट यू विल बी नोइंग व्हाट इट इज। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर इंटरव्यू देनी। आपने जॉब भी की, कल परसों कोई क्लास होगी? कल परसों नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे का तो मैंने शेड्यूल कर दिया है 3 to 7। हाँ, बीच में जिसकी इंटरव्यूज होंगी, किसका है आपकी एक वो एसपी जन में ऑनलाइन करनी है, एक आप आश्रय विकेश भी यही है, तो कोशिश करेंगे कल तक तो ही से है। कल सुबह आपको टाइम शूट करता है या आज रात को 9 बजे इज ओके टू यू? पर मैंने ना कल भी एक इंटरव्यू दिया, रोज अच्छा ठीक है, आईएमटी का जगह तो लेफ्ट हैंड है, कोई नहीं। कल था गया, हाँ ठीक हो गया। स्ट्रेस इंटरव्यू लगा था मुझे तो बहुत क्या क्या पूछते हैं? मतलब स्टार्टिंग यहाँ से करी उन्होंने कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्यों डाल दी, तो आप मेरे को डिफरेंशिएट करके बताओ कि आप किस बेसिस पे डिवाइड करते हो दोनों को। ओके ऐसा करके ओके फिर उन्होंने थोड़ा सा पूछा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे मेथड्स क्या हो सकते हैं, तो मैंने बोला कि कैश फ्लो वगैरह, तो उस पर थोड़ी वो कन्वर्सेशन हुई। फिर वो उन्होंने पूछा कि स्कूल अगर आपने इन्वेस्ट करना है, खरीदना है, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हुई थोड़ी देर तक, तो थोड़ा एंड में जाकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने कोई रन थोड़ा किया बिजनेसेस। हाँ मतलब वो कहते कोई बात नहीं। It's okay. सेकंड पर्सन आया के साथ थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई आप क्या कह रहे थे, आज भी आप मॉक देना चाहते हो, कल भी देना आज चाहते तो अभी मॉक दी, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ मेरा रोज हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा। हो? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। तो आपकी है कब? नहीं 14 को 14 को दिन है, तो ड्यूरिंग द वीक 1 2 एक नीलेश 3 इनकी ना एसपी जैन की इंटरव्यू है। सर मेरी भी 16 को कैलकाटा की है। 16 को है ना, तो आप तो आज दे ही रहे हो मॉक, आज तो दो ही दो, बस एक हुई भी है पहले या आज पहली होगी? पहली है। वेरी गुड, तो आपकी एक हो जाएगी कोलकाता 16, तो बीच मिडल ऑफ द वीक शाम को हम रख लेंगे एक सेशन। मेरा भी तो 13 को है। 13 को है, तो मोस्ट लाइकली वेडनेसडे देखना क्या डेट पड़ेगी आपका, होगा किसी दिन ड्यूरिंग द वीक ऑनलाइन होगी। आप आश्रय हैं, मेरा भी ले लेना ऑनलाइन। ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। पहले इनका कर देंगे एसपी जैन का, 3 जाने तो होगी एसपी जैसे जैन की। 15 है और आपकी कब है? 16 को। 8th है पहले, नेक्स्ट 8 मेरा 14 को 8 को सोचते हैं ना, 8 को रखेंगे। हाँ, और कौन करेगा? एसपी जैन की किसी कॉल तो नहीं है, और 3 है। तो उसके बाद ये 14 को है, फिर 18 को है, फिर 21 को है, फिर 28 को। और इंटरव्यूज हाँ। तो दे ही जानी है, 2 मॉक होगी बहुत है, उससे ज़्यादा इतनी सारी देख रहे हो आप, तो ऐसा कोई होना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी ज़्यादा नहीं देनी, ज़्यादा मेडिसिन हो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाएगी। Who else? आप आना एसपी जैन वाले में ग्रुप में, ठीक है। अगर आशीष आ गया, 4 का ही होता है ग्रुप में। सर वैसे तो डिवाइड कर दो, जैसे फाइनेंस के तो हो चुके हैं, कोई और ले लो। हाँ, एक तो नीलेश आ गए ना इंजीनियरिंग के, और कौन है? एग्रीकल्चर। कोई मार्केटिंग ले लो। ठीक है, पक्का। वो जो टाइम होएगा
उस पे आ जाना है, कोई मिस नहीं मारना। चार हो गए, चारों का हो गया। आशीष आई जाएगा उसका आज आज और कल परसों वापस आएगा। उसका नरसिम्हा जी का कब है, आज है? कल कल उसका और नंदिनी का कल है। वो जा रहे हैं फिर वो हाँ, वो गए हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तभी रिकॉर्डिंग कर रहे हूँ, तो गुड, कोई नहीं। तो वी आर एट क्या हुआ फिर? मुंबई तुम भी रिक्वेस्ट कर दोगे कभी, तुम्हारा भी हो जाएगा। नहीं है। सो नीलेश फाइन ना, इनके साथ आपकी एक ग्रुप मॉक होगी और एसपीजे, उसके बाद उसी दिन आपकी इंडिविजुअल। और गूगल मीट पे कोई लिमिट नहीं होती शायद टाइम की। 1 घंटे की होती है नहीं गूगल मीट में नहीं होती। गूगल मीट में विल डू इट थ्रू गूगल मीट, रिकॉर्डिंग नहीं होती शायद उसमें। सर आपको पेड जूम लिंक चाहिए, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बताएं, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती ना नहीं। इसमें गूगल मीट में। नहीं होती, जूम पे होती है। जूम पे होती है। अगर है आपके पास लिंक तो उसी में आप ही लिंक क्रिएट करके शेयर, हाँ, ठीक है। वी विल आई विल आल्सो लॉग इन, ठीक है। क्योंकि पहले था हमारा, फिर वो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं रही, तो लाइसेंस अकेले लेके वाइबल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चलो, ऑल द बेस्ट। अभी आज के कौन कौन फाइनल हुए इंटरव्यू? 1 नीलेश, 2 आश्रय, 3 आपने इतनी लेट हाथ खड़ा किया क्यों? कब है इंटरव्यू? 20th को है। कौन सी? एक बार आपने दी है ना इंटरव्यू, नीचे नहीं? तो बिजनेस एनालिटिक्स और नरसिम्हा जी, बिजनेस एनालिटिक्स वेरी गुड है। बी चलो करेंगे, 4 आज हो गए, ठीक है। 5वें आप ऐवे नहीं पीछे रहना, वी शुड जो है वी शुड, दिस इज रेयर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सर नेक्स्ट इंटरव्यू कब लोगे सर? मेरी वेडनेसडे बोला मैंने, ओके वेडनेसडे शाम को 4 से 6 जैसे उस दिन की थी, नीचे करेंगे। सर फेब एंड में ही लेते ना, फेब एंड, क्योंकि मार्च में ही 2 हाँ, मेजर इंटरव्यू हुए। मेरी सर जब होती रहेगी ऐसे ही, एक वेडनेसडे को मॉक सेशन रहता रहेगा, एक ऐसे 3 to 7 में भी रहेगा मॉक्स। सर मॉक्स यही होंगे। यही मोस्ट लाइकली, नहीं तो नीचे कर लेंगे। सर नेक्स्ट वाले में मैंने भी देना है। एक बार आपने दिया था एक इंटरव्यू, नहीं, नहीं तो आपका कब है? मेरा 17 को हाँ, तो क्या वेडनेसडे process है? आप लोग लिख देना मुझे ग्रुप में, तो आई विल गिव यू नंबर्स। हाँ तो करो, शाबाश, ग्रुप छुपा देना, सर आई वांट टू गिव इंटरव्यू, और सीवी प्रिंट करके लेके आना। चलो सॉरी, मेरे 4-5 इकट्ठे ही हैं सर लगातार। कोई नहीं, हो जाएगा। 20, 21, 22, 24 पीछे वाला है बच्चे, वो तो भाई एक बार इंटरव्यू बैठ के ना कॉन्फिडेंस आया था। या ओके। So good evening everyone. मेरा टॉपिक है जीएसटी और इनकम टैक्स। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम हर चीज़ पे करते हैं कि आपकी, और वो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो अगर आपने 100 रुपये की चीज़ ली तो 100 रुपये के ऊपर जीएसटी लगेगा। वो सपोज 118 हो जाता है और आगे वो आप बेचते हो 120 का, तो वो 118 पे कैलकुलेट नहीं होगा, 100 पे 20 का प्रॉफिट कर रहे हो तो 100 + 20 के ऊपर जीएसटी लगेगा, ताकि वो बाद में सेट ऑफ होके एक नेट वैल्यू हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है हमको। फिर से बोलो, तो थोड़ा स्लो समझ नहीं आता। ठीक है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है कि आप नहीं पे कर रहे गवर्नमेंट को सीधा, आप किसी को पे कर रहे हो, वो आपके थ्रू गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो और डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है, वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो सपोज यू आर आई वुड से कि रिटेलर हो आपने अब अपने होलसेलर से 100 रुपए की चीज ली, उस पे 5% सपोज जीएसटी का, तो आपने उसको 105 नेट पे किए, ठीक है। 105 नेट पे करने के बाद आपने तो 100 की पड़ी ना, क्योंकि 5 तो जीएसटी है, तो 100 के ऊपर आपने 20 रुपए कमाए, तो वो 120 प्लस जीएसटी लगेगा। 120 प्लस जीएसटी मतलब 6 रुपए को लग गया उस पे। 120 का 5% 6 रुपए हो गए। 5 आपने पे किया हुआ है, 6 आपने कलेक्ट किया हुआ है, जो नेट वन एक्सेस है वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो जीएसटी में आपने सिर्फ वो नेट बैलेंस पे करना, कभी भी पूरा नहीं पे करना होगा। तो हम 105 दे रहे हैं, 1 से 106 आ रहा है और 126 आ रहे हैं आपको, उसमें से 20 आपका प्रॉफिट है, और जो एक्सेस है आपका 1 रुपया 5 दिया 6 आया, 1 रुपया एक्सेस है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट टैक्स है कि जैसे पहली स्टेज थी 100 रुपए की, दूसरी स्टेज थी 120 की, तो अगर आप कोई और आगे बेचेगा वो तीसरी स्टेज हो जाएगी, तो वो वैल्यू ऐड पे होगा, कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि सपोज आप यहाँ से आप बेच रहे हो, आप सपोज चंडीगढ़ या दिल्ली में, तो वो आईजीएसटी लगता है उस पर, क्योंकि डेस्टिनेशन इंटरस्टेट होगी तो इंटरस्टेट टैक्स लगता है। अगर आप विद इन द स्टेट कर रहे हो या विद इन द सिटी कर रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी एज यूजुअल जो लगेगा वो लगेगा। सो टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक जा रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक जाएगा, एक्साइज ड्यूटी और वैट वगैरह लगता है।
तो 100 सपोज हम इसको 100 से लेके चलेंगे, 100 के ऊपर सपोज 10% वैट या एक्साइज है, तो 110 पड़ा होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, 110 का अगर उसने 10 रुपए कमाने हैं तो वो 120 करेगा, उसको 120 के ऊपर टैक्स लेगा, तो वो 130 रुपए पड़ा। उसके बाद 130 पड़ा रिटेलर को, तो रिटेलर ने भी 10 रुपए कमाने हैं, 140 कर रहा उसने, 140 के ऊपर टैक्स ले लिया, तो वो सपोज बन गया 150। तो हाँ, और जो लास्ट में कंज्यूमर उसको 150 देना पड़ा 100 की चीज का। तो यही अगर हम जीएसटी में जाते तो उसने 100 रुपए दिए, सपोज 5% जीएसटी था, 100 के ऊपर उसने 10 कमाए, 110 के ऊपर 5% जीएसटी लगा 5.5, तो वो 0.5 गवर्नमेंट को चल जाएगा, उसको 110 ही पड़ेगी। ऐसे करते करते लास्ट में वैल्यू एडेड सिर्फ प्रॉफिट की होगी, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ता। अच्छा, टैक्स सोर्स से लेके कंज्यूमर तक सेम रहेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है, जैसे हम स्लैब्स चेंज हो जाते हैं। टेक्सटाइल में कि 5% पे आता है, सॉरी 12 पे आता है और 5 पे चला जाता है, तो वो डिपेंड करता है। पर जीएसटी का एक फायदा मेन यही था लाने का कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा कंज्यूमर को, वो सिर्फ वैल्यू एडेड पे टैक्स देगा। सो ये हिस्ट्री है कि हम जब से पैदा हुए 2002 से, तब से जीएसटी बातों में है, चलता 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 पॉलिटिक्स के कारण कभी किसी ने मना कर दिया, कभी किसी ने मना कर दिया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो करते करते 2014 में भी आया था एक बारी, 2014 के बाद फिर नहीं हुआ, फिर 2016 पे गया, 2016 में भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट से मना कर दिया था कि अभी नहीं करना, तो वो 2017 में जाकर पास हुआ, आई गेस अराउंड मार्च में निकला सब, 2017 में पास हुआ और इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई जाके जुलाई में। तो रेवेन्यू प्री जीएसटी, इस पर ध्यान देना जरूर। 3,87,185 करोड़ 2013-14, फिर 3,31,000, फिर 3,97,000, फिर 3,91,000, फिर 107। ये 107 इसलिए है क्योंकि 2017 में जीएसटी आया था, तो 2017 के सिर्फ 3 महीने ये वाले टैक्सेस चलते थे, जो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से हुई थी, तो ये सिर्फ पहले 3 महीनों का डेटा है। ये रेवेन्यू टैक्सेशन रेवेन्यू द डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसमें सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज सिर्फ वो वगैरह है, सबका टोटल वो रेवेन्यू है। प्री जीएसटी रेवेन्यू, प्री जीएसटी जो में इनडायरेक्ट टैक्सेस But that is the term is indirect tax. Revenue comes as a bigger figure. ठीक है सर, कोई नहीं, किसी को कोई डाउट की मतलब गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू ही है। नहीं रेवेन्यू बहुत और भी सोर्सेज है ना, ये रेवेन्यू इतना बड़ी चीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू में बेसिकली सब कुछ ही आ जाता है, That डायरेक्ट, is what इनडायरेक्ट और जो But इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने आज आई थिंक एक वीडियो देखी थी, ऑलमोस्ट 60% ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज टैक्स, सारा टैक्स है। बट रेवेन्यू में मेजर सोर्स ही गवर्नमेंट का डायरेक्ट, indirect tax, other collections, lot of things come in under revenue. So it should be indirect tax revenue in crores. Prior to GST. मतलब 3 लाख और ये 3 और 4 लाख के बीच की फिगर को याद रखना, हम जीएसटी में सही होगा क्यों। तो ये हमारा जीएसटी का कलेक्शन है। 2017-18 में जब पहले साल इंप्लीमेंट हुआ अराउंड 7,20,000 करोड़, और उनका तब ईयरली वैल्यू कितना होता था 3 लाख करोड़, तो 4,20,000 करोड़ तो ऐसे ही ऐड कर रहे हो। ये ऐड इतना हुआ क्यों है, मतलब क्योंकि वो टैक्स के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स के ऊपर। इसमें एक और बहुत बड़ा इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो आपको किताबों में इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं मिलेगा। डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जिन लोगों के पास कभी वैट नंबर नहीं था, they got themselves registered for GST, and the initial game plan of Jaitley was very good and successful. What he made was he made sure कि मेरा छोटा वेंडर जो मुझे लीफलेट देता है, मैं उसका जीएसटी क्लेम तभी ले पाऊंगा जब वो जीएसटी नंबर लेगा और मुझे जीएसटी बिल देगा। यस सर। तो फर्स्ट टाइम मेनी पीपल हु वर टोटली आउट ऑफ द टैक्स नेट, राइस शेलर वाले, ये वाले, उन्होंने जीएसटी नंबर लिया, और लोगों को डर था कि अभी मोदी ने डिमोनेटाइजेशन की है, पकड़ रहा है, लपेट रहा है, अगर जीएसटी नहीं लेंगे, नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, रगड़े जाएंगे, फटाफट जीएसटी नंबर लो यार, कल को ताला लग जाएगा। So this was the one of the biggest, मेरे हिसाब से biggest side effects or side benefit of demonetization, which is very very true. People were afraid of just demonetization होके हटा था, 18 लाख लोगों को नोटिस गए थे, गवर्नमेंट ने फॉलो अप एक्शन नहीं लेना था, वो उनको पता नहीं था।
गवर्नमेंट ने 3 लाख शेल कंपनी जो आइडेंटिफाई की थी उनको रगड़ना नहीं है, लोगों को पता नहीं था। उन डायरेक्टर को नहीं रगड़ना है, लोगों को पता नहीं था। उन डायरेक्टर को भी नहीं पता था। जो कंपनीज उनसे बिजनेस करती थी 3 लाख करोड़ से, उनको भी गवर्नमेंट ने नहीं रगड़ना था, किसी को पता नहीं था। तो पीपल थॉट कि हम लोग रगड़े जाएंगे और बहुत जबरदस्त एक्शन लेने वाली गवर्नमेंट है, फंस जाएंगे, लेट अस इंप्लीमेंट जीएसटी। दिस इज हाउ it helped in GST implementation in a big way, and the game was also good कि you need to have back supplier को मैंने बोला यार तू GST ले भाई, मैं तेरा नहीं लूंगा मटेरियल। yes इस तरह से पीछे चेन में गया कि ले भैया GST, नहीं तो तेरा बिल मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा GST का, या मैं बिल नहीं अपना बुक भी नहीं कर पाऊंगा, I need GST bill। So this is how it got increased in a big way। Many people who were earlier not even in the VAT loop, they started GST, paying GST। जीएसटी आने से दो चीजें थी, तो वैट में जो लोग मतलब रजिस्टर्ड नहीं भी थे वो फिर भी टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हाँ। बिल तो कटता नहीं था वो, बिल्कुल। तो वो टैक्स पे टैक्स तो ले जा रहे थे, और जो टैक्स वो ले रहे थे तो जहाँ उनकी जेबों में आ रहा था, तो गवर्नमेंट को इस पे हिट लग रहा था, तो उन्होंने जीएसटी लगाया और बेनिफिट्स दिए कि एक तो क्लीन सिस्टम है, दूसरा डर भी था लोगों को कि आप जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो उन्होंने उसमें रजिस्टर करवाया, तो इसके कारण उनका ये रेवेन्यू बढ़ता था, क्योंकि जो हमारी टर्नओवर वगैरह थी वो तो थी, पर वो गवर्नमेंट स्ट्रीम में नहीं आ रही थी, क्योंकि हम जो जेब में डाल रहे थे वैसे, और सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है। तब वैट की सिस्टम आई गेस अराउंड की साल में एक एनुअल रिटर्न जाती थी, मंथली रिटर्न तो होती भी नहीं थी उसकी, 3 क्वार्टरली 1-2 जाने से, तो उसमें बहुत मैनिपुलेशंस करते थे। जीएसटी में भी होती हैं पर वैट में बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि फेक बिल्स काट दिए, शेल कंपनीज थी, तो उसमें टैक्स इवेजन बहुत था। इसमें टैक्स चोरी नहीं हो पा रहा उनसे फिलहाल, तो ये फिगर बढ़ती गई और आज हम इस स्टेज पे हैं कि ये एनुअल फिगर थी 2021-2022 की, और ये 30,40,000 है सिर्फ दिसंबर तक की। तो वी कैन सी द ग्रोथ कितनी आ रही है, क्योंकि जीएसटी नया था तो लोगों को भी टाइम लगा अडेप्ट करने में। अभी मोटा 150 आ रहा है, 152 समथिंग, 3 क्वार्टर का और डाल लो ऐड करके, 3.45 16 लाख, सॉरी 4 लाख 4.5 हाँ। 4 लाख 450 और हो गया, 16 18 तक चला जाएगा। अब ये क्या मंथली, आपने मंथली की बात नहीं, करी? ये monthly annual ये एनुअली है सारी नहीं, figures। है अभी तक का दिसंबर तक का था ना अभी हम- नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ जीएसटी, इन्होंने बोला कि पहले मंथली नहीं होता था वैट, अब जीएसटी मंथली GST कुछ होता है? मंथली रिटर्न फाइल हाँ, करनी उसकी पड़ती है। slab रिटर्न मंथली है, और बिल्स की भी कोई लिमिट कर दी है कितने दिनों में, अगर आपने इनवॉइस दी है तो बिल को अपलोड करना है, कोई 7 दिन या ऐसे। साथ ही ई-वे बिल वगैरह माल जा ही नहीं सकता इधर उधर। 7 नहीं, और बिल भी दिया Yes। तो उसको अपलोड करना है पोर्टल पे 7 दिन में। ई तो पोर्टल मेरा भी अकाउंटेंट है, कई बार कोई GST बिल उसने नहीं चढ़ाया होता तो वो बोलता है सर ये बिल आपका Yes। अपडेटेड बोल रहा है, वो बिल का है, तो मैं कहा वो मैं भी रात कई बार माल इधर जा रहा था, रात को 12 बजे बिल अपलोड करने पड़ जाते हाँ, थे। और वो अभी पंजाब में मेरे हिसाब से जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन जस्ट 10% है। आप जाओ कपड़ा लेने, कुछ भी लेने, पेंट लेने, कोई बिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 90% आइटम से कोई बिल नहीं मिलता, और अंडर इनवॉइसिंग है। कुछ चीज लो, हम कहे कि बिल चाहिए सर, अद्धे का बना था, रेट अद्धा पाता, क्वांटिटी अद्धी पाता, ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं है। यस एक तरफ भगवंत मान जी बोलते हैं पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट नहीं। सेंटर की भी कमी है। सेंट्रल का से जितने सेंट्रल जीएसटी वाले लोग बैठे हैं उनको भी टारगेट देना चाहिए, और वो लड़ाई करें स्टेट वालों से, या वो करके दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, देखो आप नहीं कर रहे, हमने इतनी कन्फिस्केशन की है, हमने इतने विदाउट ई-वे बिल घूमता हुआ माल पकड़ा, आपने क्या पकड़ा स्टेट में। अब थोड़ा सा बड़ा है पंजाब का भी जीएसटी कलेक्शन, बोला बोली थोड़ा कर रहे हैं, बट द पॉइंट टारगेट दे रहे हैं अपने लोगों को स्टेट जीएसटी का। जो सेंटर का भी जाना है ना, यहाँ से कलेक्ट होके पंजाब का जैसे आता है कुछ भी, पंजाब को रिवाइव करना है, जो भी यहाँ से इनकम टैक्स जाएगा सेंटर को, यहाँ सेंट्रल स्टेट जीएसटी जाएगा, उसका भी 43 पॉइंट समथिंग विल कम बैक टू द स्टेट। तभी दिल्ली में इतना रेवेन्यू आता है। सारे बिग कॉर्पोरेट्स हैं, इनकम पेइंग पीपल है, उनका जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका भी 40 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग है शायद, इट कम्स बैक टू द स्टेट। करिए। टू ऐड ऑन टू सर्च पॉइंट, ये जैसे सर ने बोला कि हम पेंट लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, हमें बिल नहीं मिलता, पर जो कंपनीज से हम लेने जाते हैं उनको बिल आया होता है, तो उन्होंने तो इनपुट पे कर दिया, आगे बिल काटा नहीं, तो जो जीएसटी की अमाउंट है ना वो उनके पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाती है कि आपने इतना जीएसटी पे किया हुआ है, आगे सेल का बिल काटा नहीं होता, वो क्या तो जो करते हैं? एक्सेस है उसका रिफंड मंगा लेते हैं। हाँ, एक नहीं रिफंड, एक क्या करते हैं, अपनी कंपनी पीछे खोली है, हम लोग रिटेल कस्टमर हैं, हमारे से ले लिया, हमारे से जो पैसे लिए ना उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है,
If I will insist, he will give me a GST bill also at the same price of the paid. But उसी ने पीछे एक अपनी कंपनी खोल ली, वहाँ से इधर से उधर स्टॉक ट्रांसफर किया, क्रेडिट ले लिया, ऐसे घुमा रहे हैं लोग गेम। अपनी कंपनी एक और खोल के सिमिलर एड्रेस और नियर बाय एड्रेस दे ट्रांसफर द स्टॉक टू दैट, वहाँ से फिर आगे GST क्रेडिट, समवेयर कंजम्पशन इज शोन, और बड़े लोगों का काम चल रहा है कि नकली GST के बिल ले रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के टू गेट GST क्रेडिट। सो उस पे अभी गवर्नमेंट को काम करना है, क्योंकि वो भी तो GST कलेक्टेड तो होगी नहीं ना आती गवर्नमेंट के बाद, वो नीचे ही सेटल डाउन हो रही है, एडजस्ट हो रही है नकली बिल ले लेके। चलो, दो हिट है गवर्नमेंट को उसमें, इनकम टैक्स पे भी हिट है, नकली बिल आया, एक्सपेंस आ गया 2 करोड़ का, और GST पे भी हिट है, GST का क्रेडिट ले लिया उस बंदे ने। तो ये सब अभी लॉट ऑफ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भाई देयर इज ए ह्यूज, एटलीस्ट मिनिमम 50% GDP व्हिच इज नॉट डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री। इनकम टैक्स कम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का रिफंड बढ़ गया। वो भी रिफंड नहीं, हाँ मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्लेम एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं आईटी नहीं, उसके जिसके अगेंस्ट सेट ऑफ कह लो या सेट ऑफ कर उसके लिए यूज करते थे एक्साइज, मॉडवेट कहते थे एक्साइज में। यस सर। इसमें क्या होगा, एक टर्म है, आईटीसी क्लेम ले लो, GST क्लेम, इनपुट Input tax टैक्स टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स ITC। ओके। ओके। तो ये मतलब एवरेज रिटर्न्स फाइल्ड है ओवरऑल इंडिया की, कितनी रिटर्न GST 3B की बात हो रही है यहाँ पे। तो GST 3B क्या होती है, जो आपकी मंथली सेल्स या क्वार्टरली सेल्स जैसे भी आपने ऑप्ट किया है आपकी सेल्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी सेल्स रिफ्लेक्ट करती है। तो इतनी रिटर्न्स इंडिया में फाइल हुई है 74,56,000 समथिंग, फिर वो बढ़ती गई, फिर ये आया 2021, कोविड हिट हुआ, बिजनेसेस बंद थे, तो उस पर शार्प डिक्लाइन आया क्योंकि वो मेजॉरिटी बंद नहीं था। फिर इंटेंस डिक्लाइन आया 2021-22 में, सेकंड वेव हिट थी। एक तो हम फर्स्ट वेव से रिकवर नहीं हुए थे क्योंकि रीजन नोन की हमने डिस्कस सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद सेकंड वेव आई, सेकंड वेव के में और ये बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ, तो काफ़ी बिजनेसेस तो बंद ही हो गए, तो उसके कारण रिटर्न्स भी कम हुई, फिर और कम हुए क्योंकि इफेक्ट तो रहता है 2 साल अगर आपकी इकोनॉमी ऐसे रहेगी तो थोड़ा फर्क आएगा। अब इस साल से GST में इंक्रीमेंटेशन आई है, उसकी देखते हैं। सो वो फिगर पे हम बात करें, जो हम 3 लाख वाली थी वो पर एनुअल होती थी, अब एक महीने का रेवेन्यू इतना आ रहा है 1,40,000 करोड़ GST से। ये अप्रैल का था, ये 2022 का अप्रैल का है, ये अक्टूबर का है 2021 का, और ये अक्टूबर 2022 का है। तो इस ईयर पिछले 7 महीने से अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास GST का रेवेन्यू आ रहा है, और ये हाई हो रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई ही चल रहा है इतने पिछले 7 महीने से। इसका मेजर रीजन बढ़ने का है क्योंकि स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, बहुत ज्यादा अल्टीमेट, उसके कारण GST रेवेन्यू बढ़ रहा है। और कोई इन्फ्लेशन में तो रीजन फिर वैल्यू ऐड और कोई ज्यादा बढ़ा इसमें स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसके कारण और कोई प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है इसमें कि प्रोडक्शन हो रही है, ये कुछ भी नहीं क्या है। क्या कि रेवेन्यू इंप्रूव क्यों हो रहा है? Yes, sir. इसके कई सारे फैक्टर हैं, गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, गाड़ी पे GST मिलता है, गाड़ी कहाँ बिक रही है सारे सर? कारों की सेल इज अब लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी वेल। अभी इतना ज्यादा नहीं है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये हाँ, जैसे नहीं मैं गाड़ियों OEM की सेल देखो, आप कार ओवरऑल इक्विपमेंट सेल, कार SUVs के उनके प्राइसेस ज्यादा है, इस कारण GST ज्यादा है। वो उसमें चोरी नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ऑटोमोबाइल में सीधा गाड़ी बनी निकली और बारकोड है, चेसी नंबर है, सब है, कोई चोरी कर पाना आसान नहीं है, तो उसको पकड़ा मतलब चोरी GST चोरी का चांस नहीं है। ऑटोमोबाइल जितना ग्रो करेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू डायरेक्ट ग्रो करेगा 15-20%। उसकी चोरी सिर्फ सेकंड हैंड कार्स में होती है, पर उस टाइम पे GST अप्लाई ही नहीं होता ना, Profit पे होता है, है प्रॉफिट पे होता है। सेकंड हैंड कार से जैसे हमारा Second hand बिजनेस है ना, हाँ। तो उसके प्रॉफिट पे GST अच्छा लगता अच्छा है। अच्छा वो भी कवर्ड है जिस पे GST अभी नहीं है। नहीं मैं डेटा लेके आया। ओके चलो चलो तो ये प्रॉब्लम्स है कि जो GST या 3B है वो रिवाइज नहीं होती, तो उसमें इसको ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक तरह से, कि एक तो अगर रिवाइज अपॉर्चुनिटी दे दी तो बिजनेसेस बहुत सारी मैनिपुलेशंस करनी शुरू कर देंगे कि हमारे गलती हो गई या हो गया। पर एक कहता है कि GST या 3B कई बार होता है कि अंडर वैल्यूड भी कई बार सेल चली जाती है, तो वो रिवाइज कर नहीं पाते, तो उसमें गवर्नमेंट को हिट है क्योंकि नया बिजनेस को इतना डिटेल नॉलेज नहीं है कि हमारे रिटर्न्स कैसे फाइल करने। साल के आई गेस अराउंड 25 से 26 रिटर्न्स आती है GST में,
और इसलिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। फिर जो इंटरेस्ट लगता है, सपोज आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा पर आपकी लाइबिलिटी तो है ना जीएसटी देने की, तो जो आप पे इंटरेस्ट लगने लग जाता है वो ग्रॉस टैक्स पे लगा देते हैं। जैसे सपोज आपने आउटपुट आपकी 1 लाख की थी और आपने इनपुट 90,000 का लिया तो आपने टैक्स वैसे के तो 10,000 देना, पर जब आपको इंटरेस्ट लगने लग जाएगा वो 1 लाख का लगने लगेगा, तो उस पर नहीं है। फिर लेट फीस, तो ये बहुत 25 पैसे वाला पॉइंट है कि नॉट अ बिग इम्पैक्ट। हाँ, तो फिर जीएसटी नेटवर्क कैपेसिटी की भी बहुत मतलब 3-4 साल अगर हम 75 ईयर्स के बाद कह सकते हैं कि इंडिया अभी डेवलपिंग है, तो जीएसटी तो अभी बहुत टाइम हुआ नहीं आए को। तो और जो बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट खा रहे हैं कि उनको नया बिजनेस है, उनके वो रेगुलेशंस या चीज़ें समझने में टाइम लगता है उनको। तो जब जीएसटी का केस लगता है तो सीजीएसटी अथॉरिटीज और एसजीएसटी अथॉरिटीज दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स करते हैं कि एसजीएसटी में भी आपकी डेट है, सीजीएसटी में भी आपकी डेट है, क्योंकि हमने सेंटर को भी पे करना है, स्टेट को भी पे करना है। तो वन थिंग शुड बी कि दोनों को इकट्ठे ही बिठा लो कि हमने प्रोसीडिंग्स करनी है, टैक्स वही बन रहा है तो इकट्ठा बिठाओ उनको। पर वो फिर स्मॉल बिजनेस पे बर्डन है, उनका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है स्टार्टिंग में, और मेजर मेरे को ये नहीं लगता था जीएसटी में प्रॉब्लम्स। किसी ने कुछ पूछना, अब हम इनकम टैक्स पे शिफ्ट करते हैं। कि आपने जो बोला दोनों को मतलब अभी अलग अलग भरनी पड़ती है, स्टेट का अलग नहीं, और सेंट्रल का। Compliance। इनवॉइस में दोनों नीचे लिखे होते हैं। बिल्कुल। 9% जैसे स्टेट हाँ। सीजीएसटी, एक स्टेट, सी की आप सेंट्रल, कोई- एक आई होती है। आई का मुझे आईजीएसटी IGST। जो इंडस्ट्री सप्लाई होती है सीजीएसटी में, जैसे पंजाब से तमिलनाडु सी की में बजाय आई लग रही है। नहीं SB हट एस जाता की है। जगह, ठीक है। सी और एस हट जाते आई लगता है। ओके, स्पेशल कैटेगरी है जिनपे अभी जीएसटी के परफ्यू में नहीं है। बहुत कम है। पेट्रोलियम है पेट्रोलियम, सबसे लिकर, ज्यादा शोर जिसका मिलता है। अल्कोहल, अल्कोहल, उस पे ज्यादा 24% है शायद जीएसटी की हाईएस्ट स्लैब। 28। तो उससे ऊपर उस पे रखते हैं। पेट्रोल पे तो कहीं ज्यादा है। एक्साइज वगैरह लगता है। अगर उसमें दो टाइप की ड्यूटीज हैं पेट्रोलियम पे और इस पे, अगर वो हट जाएगा तो 28 पे आ जाएगी। अभी कई जगह 52 है, कई जगह 48 है, कई जगह 42 है, इसलिए उसको हटा नहीं रहे और रेवेन्यू इकट्ठा करना है। इनडायरेक्टली देखें फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, एज मेनी अभी आएगा इनकम टैक्स में, वेरी फ्यू पीपल पे टैक्स, ओनली 80 लाख समथिंग दे डिक्लेयर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर है, वेयर इन रियलिटी इट इज 8 करोड़ पीपल आर मोर देन 10 लाख इजीली। और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से इकट्ठा करेगी। नहीं करेगी तो कोई गंदा बंदा जाएगा, डीजल तो डलवाएगा BMW में, मर्सिडीज में, डीजल भी जल्दी पिएगा, चलो कुछ तो पैसा आएगा सरकार को। और जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट में कस्टम लगती है जीएसटी में ना कस्टम ड्यूटी। तो कमिंग टू योर पॉइंट कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एसजीएसटी क्या है कि जब आप कोई भी बिल लेते हो ना, अगर तो वो स्टेट के अंदर ही है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हो। अगर आप स्टेट से बाहर कोई बिल लेते हो, सप्लाई करते हो, तो सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी लगता है। तो सीजीएसटी सी और एस की जगह सी और एस हट के आई लगता है। से इकट्ठा ही लगता है, सीधा क्लैरिटी मिलती है। तो डेरिवेटिव्स के लिए यू आ जाता है फिर। ओके, यूनिट ओके, प्रोटीन। गुड पॉइंट। तो इनकम टैक्स तो वही डायरेक्ट टैक्स है कि आपने कितना कमाया, उसमें से पहले हमको क्या था कि बाद में कमाना। तो इसके बाद हाँ, ये डेफिनेशन है बेसिकली, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। हिस्ट्री है कि 1860 में पहली बार ये आया था, और हम जो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहे हैं वो 1961 वाला है। 1961 वाला एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, 1962 से वही टैक्स रिजाइम या वही सिस्टम हमारा चल रहा है आज तक। बाकी जो रिजाइम्स थे वो आशा जी ने समझा दिए। तो प्रेजेंट स्टेटस है कि 10,83,000 करोड़ मतलब एवरेज रेवेन्यू है जो इनकम टैक्स रिटर्न से था 2021-2022 में। और ये अभी फिलहाल जनवरी तक का, सॉरी दिसंबर तक, 17 दिसंबर 2022 with 13,63,000 करोड़ है। पीछे वाला कब का है? 2021-22 का। थोड़ा एक और पुराना नहीं था। सर और कोई नहीं। और पुराना आ गया है सर। अच्छा, तो जैसे हम बात करते हैं कि पिछले साल लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022, उसमें से 5.83 करोड़ पीपल ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जब हमारी पॉपुलेशन 141 करोड़ समझ है। लो आप क्या हालत है। मतलब अराउंड 5-6% लोग ही हैं जो एक्चुअली टैक्स दे रहे हैं। और 70 साल से यही रजीम चल रहा है। तो उसके बाद 10 लाख के इनकम तक के लोग सिर्फ 80 लाख हैं 5.83 में। और These are very critical figures. Write them down.
80 to 82 lakhs of only आएगा only 10 lakh people 80 lakh people sorry only 80 lakh people have मतलब ही नहीं है मुंबई में 10 लाख है हर बड़े शहर में 10 लाख आराम से मिलेंगे मतलब आई वुड से कि अगर हरियाणा में हम भी। अब अपने पापा के साथ भी बैठे हैं तो भी उनकी इनकम ज्यादा होगी वो फिर भी 4-5 लाख रिटर्न पे कर रहे होंगे और पॉसिबल नोट हो रही है नहीं आता किसी का तो इनकम टैक्स में वो तो पकड़ लेना सभी को जाके मेरी 5 लाख से कम का एग्जांपल क्लियर इमेजिन पीपल वुड पे नहीं टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल नहीं है ना टोटल इनकम। तो अगर हम जैसे 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो जो नेक्स्ट 5 लाख है उस पर हम अगर 20% लगाते हैं तो 80 लाख इंटू 1 लाख करें तो 8,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। तो उसके बाद जैसे सर बोल रहे हैं कि 8 करोड़ लोग कम से कम हैं तो हमको भी पता है तो 8 करोड़ का अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो 8 लाख करोड़ बनता है। कितना रेवेन्यू जंप हो गया 100x इजीली मेट 100x ये 98 99 हो सकता है मतलब इसके आसपास ही है फिगर करंट रेवेन्यू क्या था 13 लाख 13 लाख 15 में मान लो इस साल नहीं ये तो एग्जैक्ट है मैं ऑफिशियल सोर्स से उठाया नहीं एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं मार्च 31 तक 31 मार्च ये पिछले साल का होगा ये ना पिछले साल अभी का। जिन्होंने फाइल की असेसमेंट ईयर 2022 Assessment year। 2023 अच्छा अच्छा पिछले साल का था फाइनेंशियल ईयर जो ये करंट ईयर चल रहा है उसकी इनकम टैक्स तो अगले साल तेरह भरेंगे। मार्च से 8 लाख अभी 13 लाख टोटल रेवेन्यू है 8 लाख कल 10 लाख वाला से आएगा। फिर ये इनकम टैक्स रेवेन्यू जो पुराने हैं 7.41 लाख करोड़ हाँ 8.47 है वेरी ये गुड देखो 1 लाख है। आप जीत गए हैं 3 चॉकलेट यहाँ पर ध्यान देना यहाँ 1 लाख करोड़ है यहाँ पे 11 लाख एक्सीलेंट वेरी गुड क्या था 11 times। डिमोनेटाइजेशन के 10 होगा डिमोनेटाइजेशन अच्छा डिमोनेटाइजेशन किस ईयर में थी 17 16 में थी नहीं वो नहीं उसके बाद वो आया। असेसमेंट ईयर है इफेक्ट तो बाद में आएगा। असेसमेंट ईयर एक साल पीछे हो गया ना मतलब ये 8 से 1 लाख नहीं वो एक गड़बड़ है वो 10 पॉइंट कुछ 10.02 होगा बस। ऐसे कुछ नहीं डिफरेंस सर मैंने नहीं नहीं हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता यार नहीं वो सारी फिगर उसी के आसपास अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार बैंकक्रप्ट हो जाती है नहीं तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हाई मत करना मे बी डॉट एरर डॉट एरर इसमें स्टार लगा दो 3 तो बड़ा मैं इसको करेक्ट करके ड्राइव पे डाल दूंगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ बढ़ा था हाँ जी 2 के करीब दो के करीब। 2.5 वही 9 होगा 1.8 10, 9, 1.8 ये वहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो लाख ही है, फिर यहाँ पे 2 लाख का जंप आया, फिर यहाँ पे तो कोविड ही आ गया, फिर उसके में इनकम खत्म हुई, उसके बाद फिर ये चलता रहा, 2 साल चला हमारा कोविड, 2 साल हमारी इनकम टैक्स में भी फर्क पड़ा, फिर उसके बाद 11.4 हुआ बैक टू नॉर्मल जितना 18-19 में था, अब तक 13.6 थी up to December again अगर मेन डिस्कशन हो जाए स्टिक एंड कैरेट शुड बी यूज्ड बोथ बाय गवर्नमेंट not just by stick you can claim you can get tax you have to give some carrot आप दोगे तो ये बेनिफिट दूंगा, ये प्रिविलेज दूंगा, ये रिस्पेक्ट कार्ड होल्डर का स्टैग दूंगा, आपको ये प्रिविलेजेस मिलेंगी, एयरपोर्ट पे लॉन्च होगा, रेलवे स्टेशन पे लॉन्च होगा, आपको 2 सीट में कोटा दूंगा, आप छोटी छोटी चीज़ें वेरी स्मॉल प्रिविलेजेस हॉस्पिटलाइजेशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी ऑफिस में काम करने जाओगे तो आपको यू डोंट नीड टू स्टैंड इन ए क्यू ऑफ 180 you will go to if you are a respect card holder you will go and sit in the office of chief post office his admin people will get your work done give him small privileges and you see multiplication तो प्रॉब्लम्स क्या है कि एक तो रेट ज़्यादा है और लो यील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, तो गवर्नमेंट रिड्यूस करती रही है जैसे अब भी किया, पर उसका जो यील्ड है वो नहीं आ रहा उनको क्योंकि उनको बेनिफिट ही नहीं है। कहाँ लिखा है नो कंट्रीब्यूशन आगे क्या है एक्सेस ऑफ इनकम टैक्स नो चेक आगे है कुछ और कि भाई कुछ टैक्स पेयर को कोई देती नहीं सरकार हाँ तो उसमें है कि पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी जो हमारी कैश की चल रही चलो है, कोई नहीं मतलब अभी एक छोटा सा एग्जांपल वी हैड शेयर्ड कहाँ हो छड्डो नो मोबाइल नो वी हैड शेयर्ड के सर ड्यूरिंग कोविड निर्मला सीतारामन एंड अनुराग ठाकुर दे यूज्ड टू कम announce lot of things for different people
they did not bother to announce even once कि जिसने income tax pay किया है वो अपनी 20% actual income tax paid तक का लोन ले सकते हैं without collateral if they need. लेगा बंदा वही जिसको नीड होगी. 9% इंटरेस्ट तो आप चार्ज करोगे ही. आप इंडस्ट्री को बोल रहे थे SME मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज को कि आपकी 10 करोड़ की लिमिट है, आप 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा विदाउट गारंटी. हम देगी, गवर्नमेंट देगी गारंटी स्कीम. वेंडर्स को दिया, लॉट ऑफ अदर पीपल, गरीबों को कुछ दिया. इनकम टैक्स वाले को क्या दिया? 0. अरे ऑप्शन तो देते कि अगर जिस बंदे ने लास्ट 10 साल में जितनी भी एवरेज इनकम टैक्स, जितना भी इनकम टैक्स किया है उसका 20% तक ही कैन टेक ए कोलेटरल फ्री लोन. If I needed it, I had no option but to go for personal loan. In spite of having paid 30 lakh plus loan to the government. Oh sorry, interest, direct tax to the government. GST तो छोड़ ही दो. So कुछ दिया नहीं. एक छोटी सी विंडो थी. That was COVID. अरे जिसको जरूरत होगी वो तो लेता. और आप बोलते हो डिमोनेटाइजेशन, ईमानदारी का उत्सव. वही बात जो मैं करता हूँ मजाक में, उत्सव में कोई लड्डू तो मिलता है. आज नेगोशिएशन हुई, मैं मजाक में कह रहा, मैं यार नेगोशिएशन है लड्डू नहीं ले आऊँ, मतलब क्या है? मतलब you don't give anything to the taxpayer other than the lip talk. Taxpayers, demonetization, ईमानदारी का उत्सव, we are thankful to our taxpayer. करी जाओ, नहीं देंगे लोग. Give them something. This is the most important point. सबसे ऊपर वो है. ये सब तो बात की बात है. Tax is paid only by people who cannot avoid. Avoid it. अब वो 80 में अगर आप पूछोगे ना, उसमें से 90% सैलरीड होंगे. सर जो कितने हैं डाटा? 5.83 करोड़ वाली फिगर थी कि जितने 5.83 करोड़ फिगर्स फाइल हुई है उसमें से अराउंड 4.06 करोड़ सैलरीड है. Almost 90%. 90%. क्योंकि वो हेल्पलेस है इसलिए वो वोट बैंक नहीं है. तो फिर वोट बैंक नहीं है तो इसलिए. तो पब्लिक देगी क्यों? You have to give him something. 4.06 75 मान ले. मतलब अराउंड 80. और इसीलिए है, मैं इम्पैक्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको. 8 लाख करोड़ का इम्पैक्ट है सीधा, मोटा मोटा 8 लाख करोड़. तो क्यों नहीं कुछ आप दे दोगे? 8,000 करोड़ खर्च करो फॉर डेवलपिंग समथिंग फॉर टैक्सपेयर्स. स्मॉल लॉन्चेस, एयरपोर्ट्स, सम स्पेशल प्रिविलेजेस, वेरी स्मॉल प्रिविलेजेस. इट विल ट्रांसफॉर्म. 8 लाख करोड़ इज वेरी बिग अमाउंट. और देंगी पब्लिक. दान करते हैं यहाँ लोग 10%, 20%. They don't like to give it to the government, but because what government gives to us. You get my point? Yes. Classic example is during COVID. Special windows were given, special, credit windows were given for almost everyone, but nothing was done for the taxpayer. Taxpayer की भी job गई. Many people lost job. They needed money. So somebody sold his car, somebody sold jewelry to run the show for 1.5 years. उसको नहीं जरूरत थी. Getting my point? Is there any opinion on taxation on religious enterprises? अभी रहने देते हैं. वही है, चुनने वाला पॉइंट है फिलहाल. Let's talk big and controversial है. फिर इनकम टैक्स और डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स प्री डिमोनेटाइजेशन थी 2016 में हुई, मतलब 2015 और 2016 में 6.6% और 9% का ग्रोथ था. पर जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हम कहते हैं 2017 और 2018 वाले ईयर्स, उसमें ग्रोथ था 15% और 18% का. उसके बाद जो अब रिसेंटली जो न्यूज़ आई है अक्टूबर 2022 में कि राज्यसभा RBI के मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने बोला है जो हमारी सारी इनकम टैक्स कलेक्शंस हैं वो UPI को उन्होंने एट्रीब्यूट करी थी क्योंकि UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन बहुत इजी ये कल फिगर बोली थी, मैं आपको लिखा देता हूँ. इंपॉर्टेंट फिगर है सर है इसमें. अच्छा वेरी. तो बाकी 8.98 लाख करोड़ उनकी आपस की जो उनकी इस टाइम तक की थी और दिसंबर तक मैंने डिस्कस कर दिया है. 13.63 करोड़ है, ओ 13.63 लाख करोड़ है. उसके बाद जो GST कलेक्शंस है वो वही 1.4 और 1.47 है कि 26% इंक्रीज है पिछले सालों से. कि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है फिलहाल और ये कंसिस्टेंटली 7 मंथ से यही चल रहा है. कि UPI हैज बीन द मेजर कैटलिस्ट. UPI की स्टडी उसने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने, डिजिटल पेमेंट्स 2022 इंक्रीज ऑफ 76% एंड वैल्यू 91%. दिस इज व्हेन आई रिकॉर्डेड व्हाइल शी वाज स्पीकिंग. सो इंपॉर्टेंट फिगर है ये. मे बी लास्ट ईयर का होगा जो आप पीछे दिखा रहे हो. ये लिख लो, फिगर बड़ी है. सर ये This is हाँ 76%. ठीक है.
शाबाश। सर डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं ये वैल्यू का भी है UPI ट्रांजैक्शन डिजिटल है डिजिटल हाँ वैल्यू मतलब Digital- 100 रुपए की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है Right. सपोज अगर हम 100 रुपए का व्यू लेते हैं तो ये जो ट्रांजैक्शंस थी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कि चाहे 1 रुपए की ट्रांजैक्शन है चाहे 2 रुपए की ट्रांजैक्शन है ये 223 करोड़ थी 2020 में जब यूपीआई फेमस होना शुरू हुआ था वैल्यू भी बढ़ा दी ठीक है। उसके बाद 2021 में 3800 तो उसका सीधा डबल ऑलमोस्ट डबल 7400 करोड़ ट्रांजैक्शंस थी फिर 2020 में 4.16 लाख करोड़ थी जो मॉनेटरी वैल्यू है ट्रांजैक्शंस की उसके बाद 71.54 लाख करोड़ में 17 टाइम्स जंप आया फिर जब पॉपुलैरिटी होगी एक पीक पे पहुंचती है तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आता है उसके बाद 71 से 125 पे चलेगी 76% का ग्रोथ हो गया 76% ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, अच्छा UPI यूपीआई का value। वो टोटल डिजिटल है जो मैंने हाँ। बताया उसमें 91% की ग्रोथ 2020 में वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बोथ इंक्रीज्ड बाय 17 टाइम्स वैल्यू वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन तूने ये ट्रांजैक्शन से लग है और ये वैल्यू लग है एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ यूपीआई की बात हो रही है डिजिटल में और भी बहुत कुछ आता है अदर देन यूपीआई हाँ यहाँ पे सिर्फ यूपीआई तो क्योंकि वो UPI रिपोर्ट में उन्होंने बोला था यूपीआई के कारण हमारी इनकम टैक्स बढ़ी है तो जो अदर उसके बाद ये देन टोटल डिजिटल में वैल्यू इंक्रीज 91% है और ट्रांजैक्शंस इंक्रीज 76%. 91% है वैल्यू इंक्रीज इन द लास्ट Digital payments हां टोटल हाँ, डिजिटल जो इंक्लूडिंग दिस एनईएफटी आरटीजीएस हाँ, वगैरह सब सब मिला के तो ये अकेला यूपीआई ओके इसके इसमें यही है बढ़िया है गुड है वेरी गुड एक और ये चॉकलेट 7400 करोड़ 7400 करोड़ ये तो पहले आ सर ये मेरी पीपीटी में हो चार चार हो गए हाँ नहीं बट ही हैज आल्सो डन हार्ड वर्क आपको भी तो कितने मिले 5 ना अभी ही हैज रीच्ड टू 4 चलो चलो शाबाश इसके बाद तो सर सब प्राइम हमने दो बार डिस्कस कर ही लिया है ओके तो और मेरे को अडानी वाला एक चीज लेकर आया था वेरी गुड एक्सीलेंट वो लेटेस्ट नहीं है पर हाँ हम कह सकते हैं कि उसके डेट वाली जो चीज चल रही है वो काम कैसे कर रहा है उस चीज पे ये इंट्रो है कैसे उठा सब इसमें है अगर किसी ने पढ़ना हो तो हाँ जो इसकी डेट थिंग है कि हम इस अडानी ग्रुप अपने फ्रेमवर्क के अंदर ही अपना कैश फ्लो कमाता है तो हम 2015-16 का एग्जांपल ले अडानी प्रॉपर्टीज में अडानी एंटरप्राइजेज ने 9.05% स्टेक लिया था अडानी ट्रांसमिशन में सॉरी और उसके बाद 2017-18 में अडानी प्रॉपर्टीज अडानी ट्रांसमिशन से निकल गया था उसके बाद हुआ क्या जो अडानी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स थे वो 2015 में जब उसने परचेज किए और 2017 में जब वो निकला बहुत फर्क था उनमें फर्क कैसे 2000 जून 15 में जब उसने एंट्री ली स्टॉक प्राइस था 27.6 जब उसने एग्जिट लिया 126 तो उसका 100 करोड़ अराउंड 400 करोड़ बन गया था क्योंकि जब स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करती हैं कि अगर किसी कंपनी में मेजर इनफ्लो आ रहा है तो लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इमोशंस पे चलता है तो इमोशंस में उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आ गई कंपनी ग्रो करेगी तो और पैसे डालने लग जाता है तो डिमांड बढ़ती है सप्लाई उतनी होती है तो शेयर प्राइस बढ़ता रहता है ये उस चीज का फायदा उठा के अपना पैसे अपनी कंपनी से मैं बढ़ा के बाहर निकल जाता है फिर जब अडानी पावर को अपना कैश फ्लो चाहिए था फिर वो मुंद्रा प्रोजेक्ट बना रहा था तो इंडोनेशिया से कोल आना था पर वो नहीं आ पाया तो हाँ इट इज no longer supplying the extended power at the actual rates. Several instances where Adani Enterprises directly gave out loans to Adani Power. तो ये क्या करता है? एक और चॉकलेट बढ़ गया आपका नाइस वेरी गुड एनालिसिस अच्छे पॉइंट्स हैं देखो जी सिंपल सी बात है मैं तो इतने में कंक्लूड कर लेता हूँ कि अगर एनडीटीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था अडानी जी का कभी एंटरटेनमेंट में नहीं है कभी बिजनेस में नहीं है और किसी बिजनेस हाउस में नहीं घुसे एनडीटीवी ही क्यों लिया मोस्ट क्रिटिक ऑफ मोदी गवर्नमेंट ओवर भी था चलो नेगेटिव भी करता था पॉजिटिव बिल्कुल कम दिखाता था वो उनके बाइसेस थे अलग थे बट द वे ही एंटर्ड एंड ही टुक इट वाज ए गिफ्ट फॉर मोदी जी बिटवीन अस मतलब पॉइंट टू बी अंडरस्टूड मैक्रो लेवल तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कोई बंदा 500-600 करोड़ किसी के लिए खुश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को नहीं खर्चता सीधी बात है कोई भी बिजनेस मुकेश अंबानी ने भी नहीं खर्चा उसने CNN IBN लिया अपना जियो चलाने के लिए 2 घंटे CNN IBN पे जियो चल रहा था बायस मीडिया जिसको बोलते हैं ही बॉट CNN IBN और 2 घंटे लाइव चलाते रहे उसकी बेटी लॉन्च कर रही है उसका ये आप बिजनेस न्यूज दोगे 3-4 मिनट की भाई
कि वे जियो लॉन्च दिस आप 2 घंटे चलाया उन्होंने, ले लिया ओनरशिप, चला दिया. तो ही वाज, बट इट वाज नॉट डायरेक्ट गिफ्ट टू मोदी. दिस वाज ए 500 करोड़ वाज ए डायरेक्ट गिफ्ट टू मोदी. तो कोई क्यों देगा इतना बड़ा गिफ्ट ओपनली? कुछ ना कुछ गेम खेली है बंदे ने, बेनिफिट्स आउट ऑफ द वे लिए होंगे. तो मतलब जस्ट सो यू श्योर skeptical mind, investigative mind should work, like he's trying to dig some things. और जो उसकी रिपोर्ट है, unfortunately अभी तक भी I was focused on budget, SOPs and other things, और I have not been able to go in detail of that report. कुछ ना कुछ उसमें internal trading, उसके डायरेक्टर जो है, उसके भाई वगैरह, उनके ऊपर, this is what I have gauged from the news I am hearing. So it is not, those allegations are not very easy to fade away. 1/3 हो गया आज डाला था उन्होंने शेयर किया था. तो सबसे बड़ा जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप ने क्या किया है, अपना जो कंपनी का फ्लोट होता है ना, फ्लोट कम कर दिया. फ्लोट क्या होता है कि जैसे Equity which you and I can buy. या Okay. सो से 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेट है सेबी की. उसमें भी गेम खेल गया. उसमें क्या किया कि शेल कंपनीज खोल दी केमन आइलैंड्स में, और स्विट्जरलैंड वगैरह में, और वो एफआईआई की तरह काम करती हैं. तो उनका FIIs are allowed to pump money. And have they mentioned that shell companies are opened like this? They have named the shell companies. They have named all shell companies. Then he's gone. And with him, SBI, LIC and Modi all will have to take a hit. For sure. क्योंकि SBI चेयरमैन ऐसे ही नहीं एक्सपोजर नहीं जा रहा था, LIC को ऐसे ही नहीं हो रहा है. सब अभी तो बोला ना 51% इक्विटी निर्मला सीतारमण जी, करिए फोन, दे दीजिए लोन. LIC का तो जस्ट 1% स्टेक है. नहीं, 1% LIC कम है. ने भी कुछ मतलब उसके टोटल जो stakes हैं बाकी जगह हाँ, but amount is something 20,000 crore. चलो 20 से ज्यादा हुआ. But LIC का भी अभी काफी टैंक हुआ है पिछले हफ्ते. और SBI का स्टेक, SBI का डेट है, उसमें 21,000 करोड़ का डेट दिया तो हुआ है. ये तो हिट खा लेंगे दोनों. 20,000 करोड़ इज वेरी इजी. बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट को हिट वो तो काफी. वो नहीं, बहुत ज्यादा. वो तो नहीं. किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक 1% से ज्यादा नहीं है. हम बट अमाउंट देखना है. और इकोनॉमिक किसी टाइम का में अगर 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 20-20 हजार की भी हिट आ गई ना, इट विल बी लेबल्ड एज अ स्कैम. ED में आया था कि जो LIC का शेयर है वो अगर जब उसने इन्वेस्ट किया और अब के कंपैरिजन में देखें तो अगर वो आज भी बेचता है शेयर तब भी उसको फायदा होगा. शेयर की बात अलग है, जो पैसा दिया ना, some money LIC has given it to him to play with it. Similarly SBI has given him to play with it. सबसे बड़ा इशू भी लोन डिफॉल्ट है. Let us see. It will क्योंकि आई थिंक अभी क्रेडिट स्विस will be Karmas. बॉन्ड एज कोलैटरल मना कर दिया. सो इसमें 2 पॉइंट और कि सपोज जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है और उसके आगे शेल कंपनी थी, मतलब उसी की कंपनीज है, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन जो भी है, विलमार. तो अगर सपोज अडानी एंटरप्राइजेस को लोन चाहिए पर उसकी अभी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और अडानी विलमार की है, तो वो विलमार में लोन ले लेता है और अडानी एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर कर देता है. तो ऐसे डेट उसका बढ़ता जा रहा है क्योंकि काम तो कर ही रही है कंपनीज, तो उनका प्रोस्पेक्ट बढ़ता रहता है कि हाँ काम कर रही हैं तो इनको लोन दे सकते हैं, इनको लोन दे सकते हैं. तो उसकी जितनी, जैसे 7 का ग्रुप है, तो 7 का ग्रुप में जिसके भी उसको चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाहे डेट है, जो डेट एलिजिबल होता है उस कंपनी में लोन लेके अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है. तो उसका ऐसे डेट थिंग बढ़ता गया और अभी वो काम कर रहा है जब तक हिंडनबर्ग नहीं आया था. और एक ही चीज उसकी फेवर में है कि सेक्टर्स अच्छे हैं, Cartels. जो हमने लास्ट टाइम बात की थी. Basically, there is no competition. नो competition It is और the government which is saving it. government will It's a and likely to government save till It's a 2000. government fund. अगर एक सॉरी क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, सॉरी कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स भी है. इजराइल रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, पावर प्रोडक्शन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सारे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं. तो ये सेक्टर्स उसके ठीक है, दैट कैन ओनली सेव. जैसे इजराइल ने पोर्ट खरीदा है, वो भी काफी. वो तो there are sweetheart deals between Netanyahu and Modi ji. Friend in need is a friend indeed. So when a friend, both ka friend is a friend in need now. So you have to get some good news. So if he says you are allowed to invest in Israel, then we will say कि यार at least there is some country in the West which understands Indians. US वगैरह तो नहीं understand कर पा रहे. Then that's a part of the bigger. I think the major point for Adani to be understood is that it is not the Hindenburg report which is bringing Adani down.
Hindenburg report is a trigger. अरे Adani always built up on a pile of extremely leveraged companies. उनको almost 222,000 crores का debt था. उसने जो आंसर भी दिया था ना इंडिया टुडे में, उसने परसेंटेज में बात की थी, उसने डेब्ट टू इक्विटी नहीं बात की कभी भी। वो कह रहा है जो हमारा परसेंटेज था ऑफ आवर बिजनेस वो इतना था, टैक्स मतलब लोन का, अब इतना है, तो रेवेन्यू से वो गेम खेल रहा था। उनका debt to equity ratio is less than 1. It has to be that way, Now, you not also, on revenue। perhaps another issue could be that जब रेवेन्यू इतना बढ़ गया तो परसेंटेज का क्या लेना? another issue could be Debt to profit and debt to revenue ratio उनका less than 1. So Another their debts issue are higher than their revenue. another issue would be could the source of information to Hindenburg be the Mota Bhai? Yes. मेरे को भी Because यही he is the one who loses most. The Mota Bhai has become Chota Bhai, Okay। and Mota Bhai is again Mota Bhai. Yes. Because what is happening to him has happened to Anil. Yes. Because both these guys were thinking they are smarter than Mota Bhai. Mota Bhai is Mota Bhai. No, but Reliance is smart in the sense that they are already working on becoming debt free. They do not. The beauty of Reliance Zero Buy Group has been that they have never cheated the investor. Here there was a malified intention कि जो भी आए उसको कर लो, because the hunger was too much and the appetite for debt was too much, because the bigger Mota Bhai was there behind. So you could go brazen into, you could arm twist a guy who's running ports or airports and he has to go out. And you are in a market which is basically a cartelized market. So all those things contributed to this meteoric rise. So, a Tata would never be able to grow at this pace because they would have problems with their value system. It's a personality defect, you can put it. Yeah। Mukesh Bhai can, but Mukesh Bhai understands that in the long term, if you are the darling of the stock markets, you can get unlimited access to money at a lower cost without leverage. So he will never do this. But here क्योंकि चल रहा था and all सरकार्स need funds. So when we have only 8 crore or whatever people, it's because the funds are there. तो अगर वो सारे ही टैक्स पेयर बन जाएंगे तो फिर सरकार को पैसे कौन देगा? किसी भी सरकार को। तो पैसे नहीं मिलेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? That is a big thing कि आप मुझे मेरी सरकार बता रही है कि भी आपके हालात अच्छे हो गए थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। मुझे सरकार बता रही है आपकी तो लाइफ बेटर हो गई है, वो अच्छा मुझे मॉर्निंग के पेपर में पढ़ रहा है, पता चल रहा है, या टीवी पे पता चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो वो डेस्परेशन अल्टीमेटली इट्स बर्निंग ऑफ कैश। अच्छे दिन आ गए हैं। Whether it is Bhagwan, Congress, anyone, they have to tell us कि वो देखो। तो खत्म करते हैं इसको कि वो एक इक्विटी अपनी कंपनी में लेता है, उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूज़ हाउसेज हैं जैसे मीडिया हाउसेज वो उसकी पब्लिसिटी करने लग जाते हैं कि उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि अब जनरली किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे उसका प्राइस बढ़ता है स्टार्टिंग में। तो अब एनडीटीवी तो उसके हाथ में आएगी तो अब वो अपने मजे करेंगे। तो उसके बाद जब वो पब्लिसिटी होने लग जाती है तो इन्वेस्टर को लगता है कि यार कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, हम भी पैसे जगह में डाल देते हैं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगर हो सके सब लोग अडानी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, बहुत इट विल हेल्प। कुछ फिगर्स वहाँ से कोट कर दी ना इंटरव्यू में, बल्ले बल्ले। अडानी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, क्या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, क्या क्या सेक्टर्स में हो, उसकी जो चेयरमैन स्टेटमेंट होगी वो तो बहुत रोजी दिखेगी। उसमें से कोई पॉजिटिव पॉइंट भी कोई दो ही उसके पॉजिटिव है जो मुझे लग रहे हैं। एक तो वो 3 है, अब सर की जो बात हुई उससे ऐड करता हूँ कि पहला तो वो इंडिया में विच इज़ ग्रोथ स्टोरी। आज के दिन में जैसे बोला 2 ट्रिलियन अब ऐसे ही हैं बिना काउंटेड, 3 ट्रिलियन कागज पे हैं, 5 ट्रिलियन हम हैं, तभी हर कोई इधर आ रहा है, तभी गाड़ियाँ बिकती हैं दबा के, सब कुछ होता है, बट वैसे हम गरीब हैं। तो पहला इंडिया में है, his main investments are in India, which is a hotspot for growth. Number 2 सेक्टर्स ऐसे हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट आज के दिन में मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर्स हैं, उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। he has a close repo, अब ये मत कहना good pro, but आप कहना he has a good repo with the government, so he is likely to enjoy the benefits। गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा हो जाता है कि अनऑफिशियल तो अलग चीज़ है,
but you know, since he is in the green rise or you know he's in the sunrise area or whatever you call it, so then the Sarkar gets these brownie points to score कि देखो जी इतनी पावर बढ़ गई, इतनी सोलर पावर ट्रांसमिशन होगी, इतना पोर्ट्स पे ट्रैफिक आया, तो because for a Sarkar which is very data savvy and which grows in data, so you know all this makes interesting data for the Sarkar to pitch. और प्लस अपने को पता ही है कि कॉर्पोरेट फंडिंग है ही है. And he comes Government from Gujarat, so Gujarat is the story of the country. So, you know, everyone believes that story much bigger than you know what it actually may be or whatever. So that is how. But आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि you know because you will have many people who believe in the PM. So you'll have to do a tightrope walk between and perhaps everyone's fall guy would be Adani. And government is a victim of confidence or faith in an honest industrialist. That's all. वही रेपो ही यूज करना वर्ड. ठीक है, एक कंप्लीट. फिगर कोड कर, एक फिगर कोड करने की हाँ, शाबाश. अह, एक और चॉकलेट. वो इनकम टैक्स वाला कितनी बनी? 4-5 हो गई हैं बराबर. वो फिगर में लेके आया था. गॉड ब्लेस. अब यार He has given very good interview for Great Lakes. Great Lakes ही हुई है ना Great बल्ले Lakes की, yeah. Very nice. On the budget day, अच्छा. they asked him what is important in the finance sector happening today. He said budget. Then they asked him, do you know anything? Or he quoted 4-5 points from the budget, and they appreciated him also. सेठ जी आपके क्या? हाँ, नहीं attached. Very nice. तो हाँ, तो जैसे इसका डेट है $22.1 बिलियन और इसकी जो रेवेन्यू है $14 बिलियन है. प्रॉफिट देखो 1.4. Very good. अगर हम गंदी से गंदी भी ले तो 10% एवरेज इंटरेस्ट हर कंपनी को मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है. 22.1 का बनता है 2.21, तो उसके प्रॉफिट से भी ज्यादा है. तो यहाँ पे भाई साहब फंस But गए. आपको थोड़ा सा इसमें ना आपको Projected. एक चीज आपको ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आजकल स्टार्टअप के ज़माने में ना everyone is fond of burning cash. तो what happens is we go for that valuation story ना. वो annual report में मिलेगी. मतलब that is where everyone, you know, that is how Adani ji or anyone would be able to, all the Shark Tanks would be able to. Most of the people are talking about valuations. So when you talk about valuations, that is a castle in the air. So now when there is a collapse, then you have all these job cuts which are coming in. तो जब आप ऐसा point कहोगे तो कहेंगे कि future value created के ऊपर देखो आप डेट का वो इसलिए किया because वो you know then they will give you this ज्ञान कि जितना अगर after all अगर ये सारे काम सरकार करती है तो सरकार भी तो दिवालिया होती है ना. सरकार के पास भी पैसे तो होते नहीं, वो भी छापती है. तो you know since this sector is a sector which is different than other sectors, so that is why this is acceptable. The unacceptable part is that the float was small and he was doing that you know insider trading and everything. वो बैड है. That is वो inexcusable. खतरनाक है. तो कहीं ना SEBI कहीं सुबी वाला. आपको अपने उसमें ये डालना पड़ेगा the fault is of RBI, the fault is of SEBI, SEBI. because they are the watchdogs. सरकार को तो बेचारी शरीफ होती है, उसको तो जो बताया जाता है रेगुलेटर से वो कर लेती है. So but the तो difference डायरेक्टली आप नहीं कह सकते. ठीक है. the difference between those other companies that are burning cash is that they're burning cash on marketing, on production, not on debt. No, but here you are burning cash on capacity creation. मैं भी कह रहा हूँ assets बना रहा है. Gestation period है ना. Yes. Gestation but period then, के हिसाब but then से. his point is that his interest on borrowings is itself greater than his profit. हाँ. At present. वो इसलिए वो borrowings को justify वो करेगा. 3 साल आगे की Five- projection दिखाएगा बल्ले बल्ले. वो borrowings को justify 5 years करेगा. down the line वो ये कहेगा भाई हमारे को तो इतने पैसे चाहिए. वो देखो. मार्केट तो लेगी नहीं, नया बिजनेस है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा. अब बाहर वाले देखो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तो बेवकूफ नहीं है ना. ऑल दोस इन्वेस्टर्स एंड ऑल दोस हाउसेस आर, तो उन्होंने कैपेसिटीज देखी हैं तो उसके बेसिस पे इन्वेस्ट किया. तो वो दैट इज हाउ देखिए जब आप इवन एसबीआई हो या वो लोन लेना 1000 करोड़ प्लस लोन लेने आसान नहीं है. यू हैव टू सबमिट लॉट ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स. हम लोगों को पता है फिच रेटिंग कंपनी की, फिर क्रिसिल रेटिंग, फिर 3 ऑडिट रेटिंग एजेंसीज के सर्टिफिकेट लगते हैं आपकी कंपनी की रेटिंग के लिए. फिर आप प्रोजेक्टेड कैश फ्लो दिखाते हो, 10 साल का प्रोजेक्टेड है सारा कुछ, व्हाट इफ प्लान्स, काफ़ी कुछ आता है. फिर वो बैंक भी देने से पहले किसी कंसल्टेंट से वेट कराता है कि दे दें नहीं दे दें. फिर इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, फिर इंटरनल ऑडिट आता है. तो एज सर इज सेइंग कि उसने आगे प्रोजेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई होगी. तो आपको आप बता रहे हो ना इतनी पॉपुलेशन है, इतने कनेक्शन होंगे, ये काम है,
So you know it makes sense to the people. ठीक The है? thing is, I am, you know, your business plan is good, but I have no means याद of रखना knowing है your इसको intent. उसका इंटेंट मैटर नहीं है. उसका इंटेंट क्या है कि to become the number one person in the world. That is what drives him. Probably impatience that's driving. That is what drives him. And कहीं ना कहीं, you know, his being a school dropout adds to that romantic story also. Because जितने दुनिया में आके ड्रॉप आउट है ना, उनके लिए सब वो रोल मॉडल हो गया. जैसे स्टीव जॉब्स है या कुछ भी है. अब ये लोग ड्रॉप आउट इसलिए बिकॉज इनका दिमाग बहुत पेस पे चलता है. इनको ये तो नहीं है कि इनको पल्ले नहीं पड़ता है या ये you know वो है. जुगाड़ भी करते हैं. तो when you think about that, the person will say यार whatever it takes, let us do it. Because कहीं पे हम ये भी कहते हैं animal spirits होनी चाहिए. तो जब animal spirits आ जाती हैं तो फिर predator हो गया animal. तो फिर वो predator हो गया तो आप थोड़ा सा इसमें human dynamics भी आ गए. सर इसको घुमा दो इधर. अच्छा इधर और इसको रोक के फिर स्टार्ट कर दो. मॉक्स का थर्ड